اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ آپ کی تھکی ہوئی آنکھیں، آپ کا ٹوٹا ہوا دل اور وہ لمحات جب آپ اپنی تمام طاقت کھو بیٹھتے ہیں پھر بھی آپ اللہ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، یہ لمحات سب سے قیمتی ہیں۔ اللہ تمہارا سجدہ دیکھتا ہے، وہ آپ کی خاموش دعائیں سنتا ہے اور آپ کے دل میں اس درد کو محسوس کرتا ہے جسے کوئی اور نہیں دیکھتا۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، شاید آپ کو لگتا ہے کہ اتنی دعاؤں کے باوجود کچھ نہیں بدلا، لیکن جان لو کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجدہ غافل نہیں ہوتا۔ وہ ہر آنسو شمار کرتا ہے، ہر سجدے کو لکھتا ہے اور ہر نماز کا وقت مقرر کرتا ہے۔ آپ کا کام صرف جھکنا ہے، باقی آپ کو اوپر اٹھانا اس کا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تم سجدے سے دور رہو۔ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی دعا بے اثر ہے، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی چال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تھکے ہوئے دل اور بھاری آنکھوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو شیطان پر سب سے بڑی فتح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے کو آپ کی زندگی میں سب سے خوبصورت طاقت بناتا ہے۔ وہ سجدہ جس میں زبان خاموش ہو لیکن دل بولے، وہ سجدہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، سجدے میں گرنے والے کبھی نہیں گرتے، وہ ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اس سجدے کا اثر شاید دنیا میں آپ کو فوراً نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے نظام میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ تیری ہر جھکی ہوئی پریشانی، تیرا ہر آنسو سب لکھا ہے۔ یہ درد ہو رہا ہے، وہ لمحہ ضرور آئے گا جب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارا کوئی سجدہ رائے گاہ نہیں گیا، تو بس نماز کے لیے اٹھو، یہاں تک کہ اگر آپ کا دل نہ چاہے، چاہے آپ کی آنکھیں تھک جائیں، چاہے آپ کے حالات بھاری ہوں، پھر بھی اٹھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو آسمان آپ کے حق میں جھک جاتا ہے۔ کبھی سجدے میں بندہ روتا ہے، لیکن ایک سوال دل میں رہتا ہے کہ کیا اللہ سن رہا ہے؟ کیا یہ آنسو ضائع ہو رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا سوچو، رب کائنات خود کہہ رہا ہے کہ جب تم اسے یاد کرتے ہو تو وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تو تیرا سجدہ، تیرے آنسو، تیری ہر فریاد کیسے رائے گاہ جائے گی؟ اللہ کبھی خالی دلوں کو واپس نہیں کرتا جو اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ وہ خاموش دعائیں سنتا ہے، وہ آنسوؤں کو جانتا ہے اور اس درد کو محسوس کرتا ہے جسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے گرتے ہیں تو وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا بلکہ آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ بس تھوڑا سا ایمان رکھو، کبھی کبھی تاخیر ہوتی ہے لیکن کبھی انکار نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی تاخیر دراصل بہتر وقت کی تیاری ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا دل تھک جائے تو صرف ایک بات یاد رکھیں، سجدے کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، وہ آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں، وہ آپ کے دل کو نرم کرتے ہیں اور آپ کو خدا کے قریب لاتے ہیں۔ مجھ پر یقین کرو، تم جو مانگو گے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ اس طرح یا اس سے بھی بہتر، کبھی کبھی کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ آنکھیں جو سجدے میں روتی تھیں اب سکون سے نم ہو جاتی ہیں، وہی ہاتھ جو کبھی کانپتے تھے اب تشکر میں اٹھتے ہیں۔ دل کے اندر ایک پرسکون سکون ہے، جیسے خدا کہہ رہا، میں نے تمہیں دیکھا، میں نے تمہیں سنا، بس یہ میرا وقت تھا۔ اللہ کبھی نہیں بھولتا تیرے سجدے، وہ رات کے آنسو، دل کی بے چینی، دھڑکنیں
सब रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर एक दिन अचानक वो दुआ पूरी हो जाती है जिसके लिए तूने खुद को तोड़ा था। वो लम्हा आता है जब आप सोचते हैं कि शायद खुदा ने इनकार कर दिया, लेकिन हकीकत में वो आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा था। दुआ पूरी हो जाए तो बंदा रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। गोया दिल अंदर से कह रहा है कि ए अल्लाह तू वाक़ सुन रहा है। ये एहसास अल्फाज से बड़ा है। कोई शोर नहीं, कोई फ़ख्र नहीं, सिर्फ शुक्रगुजारी। इस तरह की शुक्रगुजारी जब ये दिल से आती है ज़मीन तक महदूद नहीं रहती, ये सीधा तख्त तक पहुँचती है। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये आयत सिर्फ किताब के सफ़हात पर नहीं, ये ज़िंदगी के हर मोड़ पर साबित होता है। हम बस जल्दी करते हैं, हमें लगता है कि हमने सिर्फ इन्हें नहीं सुना। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कब देना आपके लिए बेहतरीन है। कभी कभी वो आपकी ख्वाहिश ले लेता है और आपको वो चीज़ देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। एक पोता, कभी कभी वो आपके दिल को इतना मुतमिन कर देता है कि आप इसे मांगते भी नहीं हैं, लेकिन आपका दिल कहता है अब ठीक है। ये MN का हुस्न है। खुदा पर वो यकीन पोशीदा है, लेकिन सब कुछ संभालता है। सजदे का असल लुत्फ़ तब आता है जब आप रोते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह तेरा शुक्र, तूने ताख़ीर की लेकिन तूने मुझे कसरत से दिया। फिर आपको मालूम हुआ कि आपकी दुआ का इंतज़ार करना भी इबादत है। हर रात जब तुम रोते थे, हर सुबह जब तुमने थके दिल से दुआ की थी, ये सब ज़ाया नहीं हुआ। ये सब आपको इस मकाम पर ले आया है जहाँ आज आप शुक्रगुजार हैं। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो नहीं है कि जब आपकी दुआ कबूल हो जाए, बल्कि ये तब है जब आपको एहसास हो कि आपकी दुआ कभी रायगार नहीं गई। आपने जो नमाज पढ़ी वो खुदा के पास महफूज रही और जब वक़्त आया तो इसने आपको वापस कर दिया अमन, ईमान और इत्मीनान की सूरत में। सजदा सबसे खूबसूरत तब होता है जब ये दरख्वास्त नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करता है। जब आप खुदा से कुछ नहीं मांगना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपने सुन लिया, मैंने मेहरबानी। फिर एक खामोश मुस्कुराहट आपके दिल को भर देती है, जैसे कि खुदा भी मुस्कुरा रहा है। आखिर में आप समझेंगे मैं हमेशा आपके साथ था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दिल गम पर काबू पाता है तो इसके अंदर एक अजीब सुकून पैदा होता है जो कभी नमाज सजदा थी अब शुक्र बन जाती है, जो आंखें दुआ से नम थी आप दूसरों के लिए दुआ से नम हो जाती हैं। ये रब की रहमत है, वो आपको सजदे से उठाकर अपने करीब करता है। इससे पहले तुम ही दुखों में गुम थे, अब आप खुदा से दूसरों के लिए दुआ करें। पहले आप अपने जख्मों के लिए दुआ करते थे, अब आप चाहते हैं कि आपकी तरह किसी और को तकलीफ ना हो। ये ईमान की मजबूती है। ये वो लम्हा है जब आप समझते हैं कि सजदे कभी रायगार नहीं जाते। अल्लाह फरमाता है सजदा करो और करीब आओ। ये आयत सिर्फ हुक्म नहीं है, ये एक राज है। सजदा इंसान को अल्लाह के इतने करीब कर देता है कि अपने आप को भूल जाता है। फिर इसके पूछने का अंदाज बदल जाता है। अब वो कहता है कि ए अल्लाह मैं ठीक हूँ, बस मेरी उम्मत मेरे प्यारों को सबको अपनी हिफाजत में रख। ये वो लम्हा है जब आप खुदा के ख़ास बंदों में से एक बन जाते हैं, क्योंकि अब तेरा सजदा सिर्फ अपने लिए नहीं
तमाम दुनिया के लिए है और खुदा ऐसे दिलों को खाली नहीं भेजता। कभी कभी अल्लाह आपको आजमाता है ताकि आप दूसरों के लिए आसानी का ज़रिया बन सकें। जब आप खुद किसी तकलीफ से गुजरते हैं तो आप किसी के दर्द को समझते हैं, फिर लबों पर दुआ आती है, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने मेरा साथ दिया। हर इस दिल का सहारा जो टूटने के दहाने पर है, ये रूहानियत का सबसे खूबसूरत लम्हा है। जहाँ सजदा शुक्र में बदल जाए, जहाँ दुआ सिर्फ अपनों के लिए नहीं और जहाँ दिल हर दुख के वक़्त भी मुतमिन रहता है जो इसका रब जानता है। ज़िंदगी का हकीकी सुकून तब मिलता है जब आप ये समझ लें कि अल्लाह के करीब होने के लिए किसी ख़ास मौके की ज़रूरत नहीं, बस एक सजदा काफ़ी है। वो सजदा जिसमें दिल बोलता है ज़ुबान नहीं, जिसमें आंसू गिरते हैं मगर दिल मुस्कुराता है। आखिरकार ये समझें, सजदा मांगने का तरीका नहीं बल्कि हसूल का ज़रिया है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता, जहाँ इंसान गिरता ज़रूर है लेकिन इसी ज़वाल में इसे हकीकी बुलंदी मिलती है। कभी सजदे से उठते ही तो लगता है कि सब कुछ बदल गया। नहीं, दुनिया नहीं बदली, आप बदल गए हैं। आपका दिल नरम हो गया है, आपका ईमान मजबूत हो गया है और आप खुदा के इतने करीब हो चुके हो कि अब दुनिया का शोर आप पर असर नहीं करता। और यही हकीकी कामयाबी है, जब आपका दिल अल्लाह के करीब होता है, जब आपका सजदा सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि शुक्रगुजारी, सब्र और मोहब्बत का हो जाता है। बस याद रखें, सजदे कभी रायगार नहीं जाते, वो आपको खुदा के करीब लाते हैं और जब खुदा करीब आता है तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।